Hello and welcome to the third session of Legal Aid Society's Research Dialogue Series. The Research Dialogue Series organizes open and meaningful conversations on LAS's extensive research activities, mapping a diverse set of issues across the criminal justice system, human rights, and legal empowerment of marginalized communities. आज का जो session है, उसका topic है gaps in the investigation of rape and sodomy cases, which is based on a gap analysis report published by Legal Aid Society. We will also be attaching the report with this post. And in this session, we will be conversing on various procedural, legal, and medical aspects of investigating rape and sodomy cases in Pakistan. Joining me today is Barrister Haya Iman Zahid, who is a founding member and chief executive officer at Legal Aid Society. She has more than 10 years of experience working as a legal empowerment professional on various access to justice initiatives and rule of law programs. She has extensively worked on prison reform, protection of women's rights, gender-based violence, religious minority issues, amongst a host of other areas. She has also been nominated by the government of Sindh as a legal expert for the Committee of the Welfare for Prisoners. She is a member of Sindh Public Safety and Police Complaints Commission and also the National Commission on the Status of Women. Secondly, we have Dr. Sumaya Tariq, who is an additional police surgeon at JPMC, who is an expert in medical jurisprudence. She is currently pursuing an FCPS in forensic medicine with a focus on gender-based violence. She has extensive research experience working on domestic violence, sexual abuse of minors, and other psychological aspects as well. She is a freelance writer. She is a UNFPA certified trainer for capacity building of personal handling cases of gender-based violence. And we also have Amna Baig, who is an ASP in the police service, where she currently serves as SDPO COSAR in Islamabad Police. She has previously worked in Gujarat and Rawalpindi. In her work, she particularly focuses on gender, children-related crimes, and has been instrumental in establishing a toll-free helpline for women to speak to female officers with their issues relating to the police. These helplines have contributed immensely in increasing women's access to the police in a very safe and secure environment. Thank you, everybody, for joining me in this session. And I'll start off with Haya right away. Haya, if you can, give us an overview of this research कि ये जो Legal Aid Society ने gap analysis किया है on investigating rape and sodomy cases. What is the background and overview of this research? And in your, in your experience, what were the main key findings that came out of this exercise? Thank you so much, Umar. Dr. Sumaya, Amna, it's a pleasure to share this platform with you. The Legal Aid Society has been operating since 2013 and हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम आम लोगों की आवाज़ को उठाएं और समझें और उसको एनालाइज करें और फिर स्टेट साइड के जो मसाइल हैं एक्सेस टू जस्टिस के उनके साथ फिर हम इनको ट्रायंगुलेट करके सॉल्यूशंस पोज करें. हम ऑफ कोर्स एकेडमिक लिटरेचर जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर चाहते हैं कि हम एडिशंस लेकर आएं बिकॉज वी फील दैट देयर एग्जिस्ट्स अ ह्यूज डेटा गैप and a gap in which the voices of the marginalized are adequately sort of represented. So इस सोच के साथ हम आगे बढ़े थे. हम पिछले 3-4 साल से केसेस ले रहे हैं रेप विक्टिम्स के, सोडोमी विक्टिम्स के, एंड हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में 2006 से लेकर 2016 तक there have been so many pro-women specific laws and amendments that have come about. लेकिन आम आवाम का जो परसेप्शन है जस्टिस का या इन्वेस्टिगेशन का या पुलिस के रवैये का उसमें भरपूर तरह से बदलाव नहीं आ रहा. जितनी लेजिस्लेशन हम देख रहे हैं, जितना एफर्ट हम देख रहे हैं, it seems that the perceptions remain the same, that justice is still sluggish, justice is still slow in such cases. So perception को validate करने के लिए data के gaps बहुत ज़्यादा थे. So we designed something which aimed to provide a sin-specific evidence base, a baseline, and it is not just a quantitative study but it has a qualitative aspect as well. And हमारा जो problem question यही था कि हम समझें कि rape and sodomy की trials में what are the reasons for why these trials are protracted, and we want to understand investigative and procedural gaps in rape cases particularly. So इस question को हमने frame किया और हमारा context ये था कि पिछले 4 साल में 2017 से लेके 2020 में अगर हम देखें तो acquittals जो हैं वो 23% से कम होके 5% हो गई हैं
और कन्विक्शंस जो हैं वो 10% से लेके 4% हो गई हैं. So when acquittals and convictions, which means आपके final verdicts में एक sluggishness आ रही है, तो of course नतीजा यही है कि आपकी pendency जो है cases की वो बढ़ रही है. At the moment, I think that we have about the pendency has gone up from 67% of cases instituted at one point in time to 92%. So जितने अरसे आपके cases court में pending रहेंगे, उतना ही टाइम आपके पास है टू लूज आउट ऑन क्रिटिकल एविडेंस, विटनेसेस रिजाइल करेंगे, कॉम्प्रोमाइज के प्रेशर्स आपके पास सामने आएंगे एंड केसेस विल गो ऑफ द ग्रिड या मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस आपके सामने आएंगे. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमने स्टडी फॉर्मुलेट करी. स्टडी की मैं मुख्तसर तौर पे उसकी मेथोडोलॉजी बता दूंगी और चंद फाइंडिंग्स बताऊंगी एंड देन वी कैन हियर फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ कोर्स. हमने कैस्केड एनालिसिस अडॉप्ट की जिसके अंदर हमने एवरेज रिपोर्टिंग टाइम लिया 50 केसेस का, रेप केसेस का, फिर उसके बाद हमने एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम लिया और फिर एवरेज ट्रायल टाइम लिया. इसको हमने ओवरऑल एक फिगर हमने दिया कि हाउ लॉन्ग डज द एंटायर ट्रायल टाइम टेक फ्रॉम द डेट द इंस्टेंस इज रिपोर्टेड to the final verdict, and within this how long of a delay can we attribute to the police, how long does it actually take जब सेशंस के सामने केस चल रहा है. आपको पता होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर there's a timeline given. The police has 15 days to complete their investigation and to put forward either a complete चालान या interim चालान. उसके अलावा आपका सेक्शन 344A है of the criminal procedure code which says that you should conclude trial within 3 months. फेडरल सतह पे तो अब एक नया लॉ आया है रेप ट्रायल ऑर्डिनेंस, उसमें शायद 3 माह को 4 माह कर दिया गया है. तो आपके पास टाइमलाइंस है बट आपके पास कोई मेजर नहीं था टू सी के असल में सूरत हाल क्या है. तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हमने लिया, फिर हम क्वालिटेटिवली हमने इसको देखा, हमने जजमेंट्स देखी, हमने लैंग्वेज जजेस जो अडॉप्ट करते हैं, सवाल जवाबात किस तरह होते हैं, हाउ जेंडर सेंसिटिव इज द अप्रोच ऑफ जजेस, प्रोसिक्यूटर्स एंड आईओस. जब 164 की स्टेटमेंट ली जा रही है एक रेप विक्टिम की, क्या वो एक फीमेल मैजिस्ट्रेट ले रही है, क्या इनसेंसिटिविटी से हम उनके साथ पेश आ रहे हैं, क्या इनकॉन्सिक्वेंशियल या इरेलेवेंट चीजें पूछी जा रही हैं कि व्हाट वर यू वेयरिंग या विक्टिमाइजिंग समवन फॉर बीइंग आउट ऑन द रोड एट अ सर्टेन टाइम, या किसी की पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री पे हम जरूरत से ज्यादा क्या वी वांट, दैट इज इररेलेवेंट इन द केसेस. सो ये हमने देखा. और उसके बाद हमारा जो लास्ट फेज रिसर्च का था, हम एक्सपर्ट्स के पास गए फ्रॉम द स्टेट. हम उन आईओस के पास ये फाइंडिंग्स लेके गए जो रेप केसेस में इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद हम सीनियर पुलिस सर्जन के पास गए एंड वी डिड की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज एंड फोकल ग्रुप डिस्कशंस कि दिस इज व्हाट द डेटा इज इंडिकेटिंग, प्लीज नाउ यू इलैबोरेट. तो अब मैं फाइंडिंग्स पे आ जाती हूँ. सो कमिंग बैक टू द ट्रायल टाइम, ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ कहता है कि 3 माह के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाए. ट्रायल को हम ले रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज से लेके डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर. तो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज से पहले आप देखेंगे यू हैव द एवरेज टाइम इट टुक अ कंप्लेनेंट, उसकी फैमिली या विक्टिम टू फाइल द एफआईआर. एफआईआर इज द बेडरॉक ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट एक्टिवेट्स द एंटायर प्रोसेस. और खासी तौर पे डिफेंस की पहली टैक्टिक ये होती है कि एफआईआर में डिले हुआ तो केस यहाँ पे आके हम तोड़े, हालांकि डिले इन इटसेल्फ डज नॉट डिफीट द केस ऑफ कोर्स. सो द एफआईआर का एवरेज जो टाइम, हमने 50 केसेस लिए थे, 6 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स हमने चुने थे सिंध भर से, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वर कराची, लेकिन हम हैदराबाद के भी केसेस हमने लिए थे. तो इट टेक्स 1.3 months. अब ये एवरेज है. इन सम केसेस एफआईआर वाज रजिस्टर्ड विद इन 24 hours, कुछ में बहुत ज्यादा टाइम लगा, but on average it takes 1.3 months from the date of the incident to the FIR being registered. उसके बाद it is taking the police 1.6 months to submit the challan against the legislative timeline of 14 or 15 days. और उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने ये 4.5 माह तक केस रहता है before the actual trial can commence. And once the trial starts, it takes 9.6 months. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक विक्टिम का जो जर्नी है, जब उसके साथ ज्यादती होती है और इतना प्रेशर उसके पास होता है कि आवाज नहीं उठाओ, द स्टेट विल नॉट गिव यू जस्टिस, आपकी बेइज्जती होगी, आपकी ऑनर की बात है, जहां वो फॉर्मली सिस्टम में आ भी जाता है तो यू कैन सी कि ये कि कितने मरहले हैं.
and you can see that 3% of the time is attributed to the police reporting. 97% is investigation and judicial के trial के time पे किस तरह prosecute हुआ, किस तरह case आगे बढ़ा. So overall it takes 16.8 months. अब outliers को हमने हटा दिया. ये तो मैं एक rough averages की बात कर रही हूँ. Qualitative findings बहुत ज्यादा है, उस पे हम बाद में आ सकते हैं. मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमने देखा कि एवरेज नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स 14 होती हैं केसेस में, एंड 22% ऑफ द टाइम the case is not heard. So we've also seen what the major reasons are, and the major reasons are the absence of either the defense counsel or the prosecution's witness या IO का नहीं पेश आना, तो पेश होना. So these are some of the main reasons which account for the delays. Like I said, on average 14 times there will be adjournments that will be sought, and on average it takes about 22 to 25 hearings. So obviously the more adjournments, the longer that the case will actually take. Having said this, there are a lot of other gaps which have come to light. The lack of specialization in the investigators, in the prosecutors, their inability to understand medical terminology, over reliance on DNA as opposed to finding, and the lack of connectivity, being unable to find direct evidence. ये सब problems हैं, cost के issues हैं, delays के issues हैं, chemical examiner के यहाँ से report in majority of the cases time पे नहीं आ पाती है. But in a nutshell, Umar, we now have an established baseline. जो मैं कहना चाहती हूँ, very confidently, we're very happy, and बहुत हमें support मिला from the prosecutions, the IG's office, and from experts, कि अब हमारे पास एक baseline है जिसके तहत हम आगे जाके gender based violence courts जो मुंतखब हुए हैं 2019 में और अभी फिर re-notify हुए हैं, उनकी performance को हम monitor कर सकते हैं, और हम इस discussion को, इस dialogue को आगे लेके बढ़ सकते हैं. Thank you so much. Thank you, Haya, for very concisely summarizing the entire gap analysis. मैं आमना आपकी तरफ आना चाहूँगा. Based on what Haya has just shared, we are going to unpack all of those findings. लेकिन जो procedural hurdles हैं और जो delays हैं investigation के अंदर, जिसके बारे में Haya ने जिक्र किया, I want your perspective from on the ground. कि उसके क्या reasons हैं, and how much of it do you experience in your regular interactions and experiences, जो ये 1-1.5 महीने का period है for completion of investigation and submission of challan in court. आपको क्या लगता है कि how do you see all of these challenges and delays? Yeah. Thank you so much. First of all, I hope everybody can hear me fine. First of all, thank you so much for having me here, and Haya, thank you so much for the brief, because I think it's very enlightening to know that somewhere somebody is actually working on the data to realize what the actual problems are, because otherwise we just have generalizations. We say कि ये हो गया, वो हो गया, but we do not have any basis for saying whatever we are saying. So now that there is a research into the whole thing. 2-3 things that I noted down, which Haya was mentioning and which are relevant to how we perform. उसमें जो सबसे important चीज़ है ना, जिसमें आपने delay of FIR की बात की, and absolutely I completely understand, and I realize that delay जो है, it actually leads to the weakening of FIR. That's what we call it. It weakens the FIR. But then again, there needs to be, I feel that there needs to, the judges need to be sensitized about how these sexual crimes, nobody easily comes up and talks about them. So maybe it takes victim a while to, actually communicate that something has gone wrong. And this is exactly what has been happening. So most of the times when we have seen delays in FIR, I'm not totally absolving police of its responsibilities and saying कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, but majority of the cases, trust me, what happens is that the victim is taking a while to first process what has happened, and then secondly communicate, right, that she has gone through or he has gone through something very wrong, and trust someone to pass on the information. So again, that process takes some time, and I would be really interested to know if you guys have actually pointed out the reasons for the delays, that 1.5 months का जो आपने 1.3 months का जो delay आपने mention किया in registering of the FIR. I would be really interested to know what the reasons were.
दूसरा ये है कि इन टर्म्स ऑफ पुलिस आई से कि जनरली पुलिस में रेप एंड मर्डर बहुत हीनस कंसिडर किए जाते हैं क्राइम्स एंड दे आर द टॉप प्रायोरिटी क्राइम्स लाइक ऑल द सीनियर्स। मैं आपको डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि हम इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं और हमारे लिए एफआईआर का दर्ज होना बहुत ज़रूरी होता है एंड दोज हु डू नॉट टाइमली रजिस्टर एफआईआर आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। सो जो 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 चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे ख्याल से आई डोंट नो व्हाट द रीजंस वर for the delays in the 50 FIRs that Haya or your research team went over. I just want to tell you that maybe the judges could be sensitized about the fact that it's not very easy for the victim to come, because we are, when I am interviewing the victim, most of the times, because most of the times in most of the districts I'm the only female officer, so district का जो भी कोई rape case होता है वो मेरे पास आता है, and there is one thing that I see in that usually the victim takes her time, that we need to sensitize the judges as well, that there can be valid reasons for the delays, and those delays are generally actually valid. The victim is taking her time to come up and report it, and apart from that I feel another important thing is that we need to see we need to see who actually is drafting the application, because the first draft of the application is extremely important in terms of, I think Haya would agree with me over this, that it's extremely important to know what you're writing in your first draft. And most of the time people who are victim to such violences, it's their first time dealing with police, they're not professionals, they do not know. And वो जो आपने witness resiling की बात की, उसका initial start ही ऐसे होता है कि पहले टाइम में वो जो है काफी सारे जो है वो नाम लिख लेते हैं कि ये भी मौके पे मौजूद था और वो भी मौके पे मौजूद था for whatever reason. And eventually what happens is when the actual time comes or when the trial starts, all of those or most of those witnesses, they just resile. So these are few of the important things that I think even the IOs need to be sensitized about, so that probably they can guide the victim while he or she is basically, sorry, if we're talking about just women, she needs to know what her rights are, she needs to know what the implications of the FIR is going to be, because most of the people, they think that the criminal justice system starts and ends at police. So they feel that once an FIR is registered, that's the end of the story and we have gotten justice. And this is the mindset that exists. This is where awareness comes in. This is where they need to be told that this is not the case, this is just step one, and now we will be going to the courts, and everything that is written in the application needs to be proved in the court of law. So उस हिसाब से so they realize what they're writing in those applications. डॉक्टर सुमैया, मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं फ्रॉम दैट एंड. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्टली कि जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होता है उसकी कंडक्शन के अंदर और उसकी रिपोर्टिंग के अंदर बड़े बड़े मोटे मोटे मसाइल क्या हैं बिफोर वी गो इनटू द सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट. And of course you can build up to what Haya and Amna have already talked about from a research and the perspective of the police. Thank you so much, Umar, and Haya, it's always a pleasure to be with you, very honestly. Amna is another such person जिसके साथ हमेशा बात करने में बहुत मजा आता है. देखो, while we were talking about the procedural hurdles, जो medical legal officer का काम है ना, वो start होता है बेसिकली रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के बीच वाला लेवल के वंस इट हैज बीन रिपोर्टेड, तो हो सकता है एफआईआर लॉज हो जाए, हो सकता है एफआईआर लॉज ना हो, तो दीज पीपल आर सेंट टू अस. एक लेवल तो ये है हमारा. दूसरा लेवल जो मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास आता है वो आता है ट्रायल के फेज में, जब उसको 6 मरतबा कोर्ट बुलाया जाएगा और वो 6 मरतबा कोर्ट नहीं जाएगा तो 7वीं मरतबा उसका अरेस्ट वारंट बेलेबल नॉन बेलेबल वो इशू करते हैं. तो मैं आपको अपना 2 जगह बताऊंगी. फर्स्ट पे नॉन अवेलेबिलिटी विल बी अ ह्यूज प्रोसीजरल डिले, जो मैं रोजाना के हिसाब से देखती हूँ बीइंग इन जेपीएमसी. मेरे एंड पे मेरे मेडिकल लीगल ऑफिसर्स पे 2 आपको प्रोसीजरल डिलेज मिल रहे हैं. एक तो नॉन अवेलेबिलिटी जो कि रोजाना के हिसाब से मैं फेस करती हूँ. आई हैव 3 WMLOs, 3 में से okay, they are available, they are not available, I am giving cover for sitting cover of about 8 hours. तो 8 घंटे का मैंने cover दे दिया, तो what about the rest of the hours of the day? वहाँ procedural delay मेरे पास पहला आया. मेरे पास से victim, survivor जो है उसका examination 1, 2 procedural delay. अच्छा, उसके मैं अभी I'm not going into the intricacies of
how delayed the examination itself would be. मुझे swab चाहिए, मेरे पास swab मौजूद नहीं है. You know, all the technical little things, वो पूरा दिन 6 घंटा लग गया मेरे पास एग्जामिनेशन में. वो भी एक बहुत बड़ा, 6 घंटा को आप जब एवरेज पे ले जाते हो तो यू कैन, मतलब वही वाली बात है ना, 1.3 मंथ्स आए कहाँ से? तो 1.3 मंथ्स में शायद 2 दिन मेरे भी होंगे, यू नो, हो सकता है मैंने भी 2 दिन लगाए हो. इट्स वेरी मच फीजिबल, क्योंकि मैं देख रही हूँ. देयर वाज दिस केस 3 days बैक इन JPMC. रात को वो बच्ची आती है हमारे पास, सुबह रात को मतलब लाइक इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग अराउंड 2 AM. मेरी WMLO 1 बजे घर गई थी. शी वाज नॉट कॉल्ड बैक. दूसरे दिन उसको 2 बजे देखा गया, बिकॉज द फैमिली डिड नॉट कम बैक एज दे वर टोल्ड टू कि आप 9 बजे आ जाइए. सो एसेंशियली मेरी WMLO मौजूद नहीं थी, बट द फैमिली टुक द एंटायर टाइम. तो प्रोसीजरल डिले में जो सबसे बड़ा मसला है, लैक ऑफ मैन पावर है. जब तक मेरे पास मैन पावर नहीं होगी, जब तक मेरे पास सिटिंग WMLO सिटिंग MLO नहीं बैठा हुआ होगा, जब तक मेरे पास मेरी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो नहीं होंगी, तब तक मेरा प्रोसीजरल डिले, मैं उस हर्डल को ओवरकम नहीं कर सकती. हैविंग सेड दैट, फिर वो इन्वेस्टिगेशन वाले स्टेज पर आ जाइए. इन्वेस्टिगेशन वाले स्टेज पे लाइक आई सेड 4 मरतबा मुझे समन आया या 5 मरतबा मुझे समन आया, और मैंने 5 मरतबा जाने गवारा ही नहीं किया. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि वी all of us do that, but there are times when we are so tired of the courts कि हम कोई ना कोई कोर्ट मिस कर देते हैं. या एक दिन में 4 कोर्ट्स ने बुलाया है, 3 GBV हैं, 1 नॉन GBV है. हो सकता है मैं जिस कोर्ट में गई हूँ उसके बाद मुझे टाइम ही ना मिला हो बाकी 3 में जाने का. So I'm not putting the onus, or I'm not putting the responsibility totally on the MLO, but humanly, is it possible, you think, to attend 4 courts in one single day? वहां पर रिफॉर्म्स की जरूरत है कि when you're calling an expert witness, तो प्लीज उसको इतना टाइम दीजिए कि वो आके अपनी प्रॉपर टाइम से आए और प्रॉपर टाइम से आके अपना रिकॉर्ड कराए. To both the points that the panelists have, the speakers have made, जैसा डॉक्टर सुमैया ने कहा ना कि मेरे भी डिपार्टमेंट का कुछ contribution है इस डिले के अंदर. तो जब डेट between the time when the FIR is registered to when the challan that is being put together, we found out that the average time the medical examination takes is about 15 to 16 days. So you can see, and the average time taken in submission to the chemical examiner is about a month. And in cases, in 30 of the 50 cases, there was DNA collection, and the average time it took was about 10 days. अभी तो मैं उस पे जा ही नहीं रही हूँ कि क्वालिटी क्या थी, कंटेमिनेशन थी, चेन ऑफ कस्टडी की मैं बात नहीं कर रही. मैं ये बात नहीं कर रही कि हम स्पेसिफिक बॉडी एरियाज पे ही तवज्जो दे रहा था मेडिकल लीगल ऑफिसर कि सिर्फ वजाइना एंड एनस का एरिया देख रहे थे, तमाम बॉडी को आपने नहीं देखा. या जब आप उस एरिया की इंस्पेक्शन कर रहे थे तो आपकी सिर्फ ध्यान पलंग चारपाई पे था, आपने आसपास की चीजें नहीं देखी, आपने कोई ग्लास नहीं उठाया फॉर मोर एविडेंस. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी. Again, we're just talking about the first aspect of the research right now, is कि इतना डिले क्यों है. फिर 164 की जो स्टेटमेंट है, you know, the cardinal sort of principle, you know, कि it should be taken as soon as is possible. The female should be produced before the magistrate within 24 hours of notification for that to be recorded, and the law now says कि video recording होगी. In many of the cases we've seen कि it was just simply not recorded. So इस तरह की चीजें हैं जो now we have that insight. But again, you know, over to the others for the qualitative insights, of course. Right. Dr. Sumaya, I would like to come back to you based on what Haya has just said and what Amna mentioned earlier. आपने कहा कि मैन पावर और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं इन मेडिकल लीगल एग्जामिनेशंस. उसके अंदर जो कैपेसिटी है, ट्रेनिंग है MLOs की, उस बारे में भी आई वांट कि आप थोड़ी सी बात करें, क्योंकि हमने रिसर्च में देखा कि कुछ जगहों पे जो रिपोर्ट्स थी मेडिकल लीगल एग्जामिनेशंस, उनकी रिपोर्ट्स में इनकंसिस्टेंसीज थी कि वो दे वर नॉट सेइंग द सेम थिंग, and there were also some issues with the assumptions that the medical legal officers were making in terms of what can a medical legal examination prove and what it cannot. तो मैं चाहूंगा आप उस बारे में थोड़ी सी बात करें. Okay, देखो Umar, to be very honest, it takes all kinds to make any department, very honestly. While I have been working with Legal Aid Society, capacity building भी हम कर रहे हैं, but still to date, two finger test को obsolete तो बात चलो सिंध में नहीं किया गया, that is another thing
कि उसको लीगल नहीं करार दिया गया, बट इट इज स्टिल वेरी मच एन अनएथिकल इशू। बीइंग अ मेडिकल पर्सन, मैं किसी की भी पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री पे कमेंट करना या किसी की कोई भी पास्ट हिस्ट्री पे कमेंट करना, इट शुड नॉट बी माय प्रेरोगेटिव। मगर मैं अपने शहर कराची में ही ये चीज देख रही हूँ कि while 4 of the WMLOs are not performing the two finger test on grounds that it is an unethical, 3 of the WMLOs still continue to do it with abandon. So there will be, for such ladies, there will be no amount of training that I can impart or anyone can do जो उनका mindset change करेगी। टू फिंगर टेस्ट क्यों किया जा रहा है, उसका रीजन सिंपल ये है, बिकॉज इट टेक्स द ओनस ऑफ द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द एविडेंसेस के वो मजीद एविडेंसेस के लिए देखे। लाइक हया सेड के सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स देखना, सिर्फ एनल रीजन देखना इज नॉट द पॉइंट। अच्छा, कुछ जो हम एग्जामिनेशन करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें रह यूं जाती थी बिकॉज हमारा परफॉर्मा जो था वो बहुत ज्यादा लैकिंग था। उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, अभी भी वो इम्प्रूवमेंट के उसमें है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। उसी में हिस्ट्री का एक पोर्शन डाला जिसमें ये था कि द विक्टिम शुड narrate the history and it should be recorded in his or her own words। वो बेसिकली हम चेक क्यों कर रहे थे कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें शुरू में तो बच्चे ने या लड़की ने या उस जो जिसके साथ ये एक्ट हुआ है वो हमें हिस्ट्री देते हैं, मगर बाद में बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर्स या इनएडवर्टेंट एम्ब्रॉयडरी ऑफ द स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। सो हमने वहां पर ये डाला एंड मेरा अपना ख्याल ये है कि 2-3 केसेस में जो एडीजे 1 मलीर में चले हैं नवीद सुमरो साहब की कोर्ट में, उन्होंने इस हिस्ट्री को बाकायदा यूज किया टू फर्दर द केस ड्यूरिंग ट्रायल। उन्होंने उस हमारी हिस्ट्री को जो प्रोवाइडेड हिस्ट्री थी उसको यूज किया। सो इम्प्रूवमेंट हमने प्रोफॉर्मा में लाए ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। बट लाइक आई सेड, देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू फिल अप द प्रोफॉर्मा। उनका मैं क्या करूं, व्हाट टू डू विद देम? उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट चेंज देम। अच्छा, थोड़ा सा हया ने बात की थी फीमेल जजेस की, या वाज इट आमना? मैं एक बात बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो जजेस का रहा है ट्रायल कोर्ट्स में for the past 22 years, I feel that insensitivity or sensitivity has nothing to do with gender. Basically, हम ये कहें कि जी फीमेल जजेस हम लगा देंगे तो हम अपना सिस्टम बहुत अच्छा कर लेंगे। No, I think sensitivity ट्रेनिंग की दोनों को जरूरत है। उनके सामने जो स्टेटमेंट होता है 164 का, यस, 164 में आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड रेडी टू हेयर जजेस चाहिए। 164 पे मैं नहीं जाऊंगी, बट मेरा अपना ख्याल यह है कि जिस बच्ची से मैंने 1.5 घंटा लगाया पूरी कहानी सुनने में, पूरी कहानी मैंने उससे बैठ के सुनी, तो क्या वो बच्ची इतने आराम से, वो मेरे साथ कमरे में अकेली थी या मे बी जस्ट वन मोर पर्सन, उसके सामने उसने मुझे बता दिया, तो क्या वो उस जज के सामने जाके पूरी कोर्ट के सामने, भरी कोर्ट के सामने वो सारा स्टेटमेंट बता सकेगी? बट उसके पे भी ट्रायल्स आए, उस पे भी रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स के बाद अब हमारा कम से कम जजेस ये करने लगे हैं कि एक सेपरेट रूम में, एक अलग रूम में करने लगे। तो यस, इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, रोल ऑफ एमएलओस में, एमएलओस का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास वेजाइनल स्वैब्स कलेक्ट करने के लिए जो स्टेराइल स्वैब स्टिक्स होते हैं वो मौजूद नहीं है। ठीक, अब मेरे पास वो जो पैकिंग मटेरियल है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। जिस चीज से लिखा जाना है, हो सकता है डॉक्टर साहब के पास उस वक्त वो कलम भी मौजूद ना हो। सो या एक इन्होंने और चीज लगाई है हम पे अभी, मेडिको लीगल रिफॉर्म्स, जिसका मैंने बहुत शिद्दत से अपोज किया था, वो ये है कि जी ऑल सर्टिफिकेट्स आर बाउंड टू बी काउंटरसाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस सर्जन और एडिशनल पुलिस सर्जन। उसका मतलब यह है कि फर्दर डिले इन रिसीविंग ऑफ द रिपोर्ट, यानी रात में या दिन में मैं उठ के जा चुकी हूँ, आई एम द एडिशनल पुलिस सर्जन, मैं 2, 2:30, 3 बजे उठ के चली गई हूँ, मेरे जाने के बाद केस आता है, उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट बन गई है, एंड दैट मेडिको लीगल रिपोर्ट, मे आई रिमाइंड यू, इज रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन ऑफ सैंपल्स एट आइदर द केमिकल एग्जामिनर और द डीएनए लैब। वो उस वक्त तक इशू नहीं की जाएगी या हैंड ओवर नहीं की जाएगी जब तक उस पे मेरे ऑफिस का स्टैंप और मेरा सिग्नेचर नहीं हो जाएगा। तो दैट causes an undue delay। MLC बना रखा है, सैंपल्स कलेक्टेड हैं, अब मैं दोपहर 4 बजे वो बनी है रिपोर्ट, एंड नाउ दैट रिपोर्ट विल बी वेटिंग फॉर मी। हो सकता है मेरी कोर्ट हो, मैं 12 बजे पहुंचूं दूसरे दिन, हो सकता है मेरी कोर्ट ना हो, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊं, फिर वो आयु जो है वो अपने हिसाब से टाइम लगा कर आएगा। सो व्हाई आर वी क्रिएटिंग हर्डल्स इन एन ऑलरेडी हर्डलफुल सिस्टम?
ये मेरे हिसाब से दैट इज अगेन, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल जो क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है इन क्विक डिस्पैच ऑफ द मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स। आप देखो ना, हम बेसिकली घंटों की बात से निकल के हम दिनों में आ गए हैं। लाइक पहले वो एक बच्ची आई है जो 1 बजे रात को आई है, वो दूसरे दिन 2 बजे देखी गई है, मैं चली गई थी उठ के। अब उसकी रिपोर्ट मिलेगी दूसरे दिन 11-12 बजे। आप 2 दिन तो यही लगा लो ना, डिले तो मेरे पास ये आ गया अगर सारे सैंपल्स भी कलेक्ट हुए हैं। सो ये वाले ये प्रोसीजरल हर्डल्स जो है ना, ये बहुत ज्यादा दे आर लाइक इश्यूज हैं। फिर हमारे पास हाई प्रोफाइल केसेस का, वो आई थिंक आमना मुझसे बहुत अच्छे बता सकेंगी। ये जो हाई प्रोफाइल का मतलब हाई प्रोफाइल नहीं है, हाई प्रोफाइल का मतलब ये है जिसका सोशल मीडिया को भनक पड़ गई है। सो सोशल मीडिया विल एक्ट एज अ डेटरेंट। उस बच्चे को मुझ तक लाना विल बी अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। एक मॉब होगा जो साथ में आएगा, एक प्रेशर होगा जो मुझ पे आ रहा होगा, हो सकता है मुझे मैन हैंडल भी किया जाए, हो सकता है मुझे थ्रेट्स भी मिले। उसके आने से पहले मेरे पास 25 फोन कॉल्स आ चुकी होंगी, चाहे वो जेन्युइन केस हो चाहे वो ना हो, बट इट विल बी टर्न्ड इनटू अ सर्कस, मॉब मेंटालिटी। उसके लिए भी अगेन हमारे पास ना पुलिस फोर्स काफी है, ना मेरी कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। आई हैव हैड पीपल जो मेरी WMLO ने जब देख लिया, उसके बाद उन लोगों ने शाम में, क्योंकि वो अगेन इट वाज डिलेड, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट डिले हुआ, मेरी काउंटर साइन नहीं था उस पे, तो वो डिले हुआ। और डिले होने के बाद उन्होंने कहा जी जो WMLO है शी इज लाइक शी इज डूइंग सम हैंकी पैंकी, और वो मेरे ऑफिस के बाहर दूसरे दिन नारे लग रहे थे। सो व्हाट टू डू देन? इस माहौल में यू थिंक एनीबडी विल बी वर्किंग? हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम अपने लोगों को होल्ड ऑन करने के लिए तो उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगी। मॉब मेंटालिटी में नहीं बदल सकती। ये वो टेक्निकलिटीज हैं जो हम बहुत सारी चीजों में सोचते ही नहीं है, वी डोंट इवन थिंक अबाउट देम। मतलब MLOs पे बात तो होती है कि MLOs अवेलेबल नहीं है, या MLOs रह कितने गए हैं यार, है ही नहीं। जिन्ना जैसा सेंटर जिसमें डेली मेरे पास 6 से 7 रेप केसेस या सोडोमी के केसेस आ रहे हैं, जिसमें मेरे पास डेली 2 से 3 फीमेल डेड बॉडीज आ रही हैं, मेरे पास टोटल 3 WMLOs हैं। हाउ एम आई सपोज टू मेक देम वर्क? मेरे पास टोटल 6 MLOs हैं। हाउ एम आई सपोज टू टेल देम कि हर सोडोमी के केस को प्रॉपर्ली देखना, प्लीज प्रॉपर्ली देखो। हर एक एक रेप केस की एग्जामिनेशन initially Haya was telling me all the timelines ना, कि कितना टाइम लग रहा है हमें। रेप की एग्जामिनेशन अगर मैं प्रॉपर्ली करती हूँ along with हिस्ट्री टेकिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे चाहिए होते हैं, 2 hours। 2 hours एक बच्ची को राजी करना कि मुझे उसको एग्जामिन करना है, या एक बच्चे को राजी करना कि मुझे उसको एग्जामिन करना है, विल टेक अराउंड एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 मिनट्स। हो सकता है उसको, मैंने ऐसे भी लोग देखे, मतलब लाइक यू रियली डोंट नो हाउ लॉन्ग अ चाइल्ड और अ पर्सन और अ गर्ल वुड टेक। 14 साल की लड़की है, उसको एग्जामिन करना कितना मुश्किल है, आई नो दैट। अगर वो नहीं है, लाइक कोऑपरेटिव नहीं है, तो फिर हम क्या। अच्छा, एक और भी मैं आपको बताती हूँ, जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में एक हमने डाला है कि कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। आपको पता है जजेस विल टेक एन एडवर्स व्यू ऑफ दैट, कि नॉन कोऑपरेटिव, ओ शी हैड समथिंग टू हाइड, इट वाज प्रॉब्ली अ रिलेशन। दैट डज नॉट मीन कि वो नॉन कोऑपरेटिव थी। अगेन माइंडसेट का चेंज बहुत जरूरी है, कि वो बच्ची अगर नॉन कोऑपरेटिव थी या वो बच्चा नॉन कोऑपरेटिव था, दैट डज नॉट मीन कि कोई हैंकी पैंकी थी, दैट डज नॉट मीन दैट द चाइल्ड और द बच्ची वाज वेल यूज्ड टू द एक्ट। नो, इट मीन्स कि दे नीडेड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो हमको ये बहुत सारे हर्डल्स हैं, माइंडसेट चेंज है, पता नहीं कितने हर्डल्स हैं जो डेली डेली मैं फेस करती हूँ, कितने हैं जो मैं भूल चुकी हूँ, कितने हैं जो रोजाना नए आते हैं। सो उमर, मेरी तो कहानी नहीं खत्म होगी, बट आई थिंक वी शुड गो बैक टू आमना। जी, thank आमना you. विल हैव अ लॉट मोर टू राइट, अ लॉट मोर टू ऐड हियर। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने काफ़ी सारी टेक्निकल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए, एंड दीज आर द इश्यूज दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। बिफोर आई कम बैक टू आमना, Haya, we have heard views from both practitioners from medical side and from the police side. So based on what we've just heard from Dr. Sumaya and Amna, how do you think that the research that LAS has undertaken, how does it reconcile with these insights from the ground? Oh, it absolutely does echo this. The sole focus remains the physical health of the victim. हम psychosocial needs पे तो जाते ही नहीं हैं, वो availability नहीं है. In very few cases with the medico-legal officer actually make an assessment on the mental state of the victim. या उनके पास ट्रेनिंग नहीं है इसके लिए, या उनका जहन वहाँ जाता नहीं है। तो ये जो आखिरी बात डॉक्टर सुमैया ने कही, ये बिल्कुल एको करती है। दूसरी बात, मैं DNA और मेडिकल एविडेंस पे 3 assumptions बताना चाहूंगी जो हमारी 3 findings हैं on the qualitative side.
पहला तो यही है कि from the FGDs, the discussions with the IOs and from the analysis of the case files, etc. इनसेंसिटिविटी की जहां तक बात आई थी तो लैंग्वेज का बड़ा मसला है. जब आप जिना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ जिना बिल जबर, you're automatically, they're not synonyms, you can't just change them around. इंटरकोर्स और रेप के अंदर जमीन आसमान का फर्क है. तो इस तरह की लैंग्वेज का यूज अगर वो रिपोर्ट में है तो फिर वो आगे प्रोसिक्यूशन ने कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो उसको जज ने अडॉप्ट कर लिया. इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो लैंग्वेज का एक फाइंडिंग हमारी है. दूसरी, कमिंग बैक टू व्हाट the medical legal gaps are, एक assumption and investigation की जहां तक बात है, what are we looking out for? Our study indicates on the qualitative side that there is an assumption that a condom will not be worn, which means that there is an assumption that if there is no ejaculation and there is no semen to be found, that the rape never happened. ये मसला है. So there is over reliance on DNA. Salman Akram Raja के केस के बाद से of course there is a need for the SOPs, and सिंध में वो through a high court case notify हो चुके हैं. The police has been working. इनकी study के time पे ये नहीं निकले थे तो हमें इनको analyze करने की जरूरत है of course. But एक over reliance. दूसरी बात जो उन्होंने कहा 14 साल की बच्ची को मैं राजी कैसे करूंगी, ये वो एक difficulty है in proving the rape through medical evidence when it comes to a married woman. Because as she said that a lot of them are still relying on the 2-finger test. पहली तो बात ये कि सिंध को इसको इलीगल करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फेडरल ऑर्डिनेंस अप्लाइज टू अस राइट नाउ. फेडरल लॉ आ गया, ऑर्डिनेंस अब वो नहीं है, वो पास हो चुका है. दैट इज बैनिंग इट. आप हाई कोर्ट की जजमेंट 2021 को अगर छोड़ दें, which should be persuasive precedent, so we already have the law in place. It is banned. Sin does not need to, अभी जब तक हम अपना रेप का कोई और ऑर्डिनेंस नहीं निकाल लेते या कोई और एक्ट नहीं निकालते, so it is banned. लेकिन बहुत चैलेंजिंग है. छोटी बच्चियों के लिए तो आप फिर यही मेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट व्हेन देयर इज अ वुमन हु इज मैरिड बिकॉज ऑफ द ओवर रिलायंस के, और तो हम जियो फेंसिंग पे नहीं जाते, हम डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल एविडेंस हमने नहीं देखी हमारी केस फाइल्स में in any of the cases, even where the facts alleged that there was blackmail हो रहा था, तस्वीरें खींची जा रही थी, उसमें भी हमने कोई ऐसी different sources of evidence का इस्तेमाल नहीं देखा. So perhaps that's something that maybe Amna would like to elaborate a little more on. Absolutely, Haya. I completely agree with you on this. Even police, maybe there is this perception that for for rape, DNA is everything. So that is the only evidence that generally is focused on, and this needs to be. I think this is where the training is needed for police as well. Apart from victim handling, I think this is also one of the reasons that probably I'm sure it's leading to acquittals. और इस तरह की सो बेसिकली इट्स लीडिंग टू एक्विटल्स, एंड आई थिंक कि बहुत सारा एविडेंस जो है वो ज़ाया हो जाता है बिकॉज फोकस ही सिर्फ डीएनए पे और मेडिकल पे. एंड देन अगेन हाया, अब हमारे केस में ये होता है कि डीएनए टेस्टिंग के लिए वी हैव टू टेक द विक्टिम टू लाहौर. सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज पोस्टेड इन पिंडी, वी वर टेकिंग द विक्टिम्स टू लाहौर, एंड यू वुड नॉट बिलीव दैट विक्टिम्स आर आल्सो कमिंग फ्रॉम पेशावर टू लाहौर फॉर डीएनए टेस्टिंग. सो होता ये है कि जो ट्रेवल कॉस्ट है और द आईओ व्हिच हु हैज actually invested so much time and money into taking the victim to Lahore and Peshawar, so he is basically not probably concentrating on the other evidence which is equally important in this case. जैसे हाया ने mention किया कि वो जियो फेंसिंग करा सकता है या वो उसका CDR analysis करा सकता है, but then again हाया, this is where probably the training is needed. कि जब आप जैसे मैडम डॉक्टर सुमैया ने कहा कि उनके पास एक चेकलिस्ट है of everything that she needs to do, or the form which says कि ये सारी चीजें उन्होंने मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन में चेक करनी है. आई थिंक देयर इज अ नीड कि हम इस तरह की एक चेकलिस्ट रेप के केस में भी बनाएं और उसमें लिखें which should be notified, which we are trying to do through the anti-rape implementation committee, कि उसमें आईओ को पता हो कि उसने केस फाइल यानी कि केस की मिसल में क्या क्या एविडेंस लेना है in a rape case, because that is extremely important for convictions. So he can't just say कि ये उसके कपड़े, ये बेडशीट है और ये लड़की का डीएनए है. No, I mean there should be statements, there should be CCTV footage जो वो लेता है उसका analysis होना चाहिए, forensic analysis होना चाहिए, उसके phones के CDRs का analysis होना है, and all of that evidence should be linked together to form a case file which eventually leads to conviction. But then when we talked about conviction rates and low conviction rates, Haya ने खुद mention किया. I would also like to know if Haya you have probably
probably studied this in your report कि कितने ऐसे cases थे जिसमें reconciliation हो गया, even though it's a non-compoundable offense, but there are so many cases जिसमें victim जो है वो जाके कह देती है कि ये मेरे जो है ना मुल्जिम नहीं है. That is something that's also needed to be looked into कि अगर ऐसी situation है, and we cannot blame the victim here. I am not blaming the victim. I think she is pressurized into saying, or the circumstances might not be so where she can pursue the case. As you say, 5, 6, 7, 8, 10 महीने लगते हैं. How is she paying for that? She's living with her father. Eventually, वो economically नहीं independent, and she cannot, मतलब वो नहीं कर सकती, तो वो resile कर जाती है. So इस तरह की situation में what are the gaps and how can they be filled? So for example, जैसे हमने 311 जो है वो ऑनर किलिंग में लेके आए थे, so इस तरह से कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें even if the victim says for whatever reason, social pressure, whatever, when she reconciles in a non-compoundable offense, what happens to the trial? Yeah, I mean, I can briefly outline those. In 22% of the cases, there was an out-of-court settlement. Now, even if it was non-compoundable, but अब आप क्या करें? उसके ना तो फिर जिम्मेदारी prosecution की है कि they must still pursue it with as much vigor in the name of the state. तो 22% के, और हम यही देखते हैं कि the longer the trial took, the higher the probability there was of the acquittal or the case being set aside because of the out-of-court settlement. 52% बाकी जो cases बचे थे, 52% में the prosecution witnesses resiled. जैसे आपने कहा, in many cases they could just have been inaccurately sort of included to begin with in the FIR. And FIR की language भी अगर हम देखें तो they're supposed to be a verbatim record of the statement, but वो एक standard format है, वो सारी FIRs more or less एक ही जैसी robust आपको लगती हैं. In 58% of the cases, it was the complainant that resiled. So when we qualitatively looked at the final, देखें ये 50 केस फाइल जो हमने ली थी, हमारा मकसद पहले हमारी मेथोडोलॉजी चेंज हुई. हमने पहले सोचा हम 100 केस फाइल्स लेंगे, इसमें 70% एक्विटल्स देखेंगे, 30% कन्विक्शंस देखेंगे. But at the end we only landed up with 50 केस फाइल्स. 50 के बाद we stopped क्योंकि रिजल्ट सैचुरेट, डेटा सैचुरेट होने लगा, वही चीजें हमें ट्रेंड्स पैटर्न्स दिखने लगे. प्लस हमने कोविड के टाइम पे फर्स्ट और सेकंड वेव के टाइम पे रिकॉर्ड रूम्स में जाके कहीं हमें फोटोकॉपी करने की परमिशन नहीं मिलती थी. वी हैड टू मेक श्योर कि anonymity is maintained of course in the record, etc. But there are 4 major reasons which we had summarized. The first was conclusive medical evidence, because of the over reliance on it and not building up a plan B, of course. The inadequacy of digital evidence, where the facts sort of indicated कि digital को use था, तस्वीरें ली गई थी, videos थे. Inconsistencies in the victim या complainant statements themselves, because perhaps of the delay of the 164 being done in the first place, and then the absence of the victim and complainant themselves from trial. इस पे मैं एक बात करना चाहूंगी कि हमने देखा है कि आप मोटिवेट तो छोड़ें, आप रुकावटें ही नहीं हटा रहे कोर्ट रूम में आने के लिए. डॉक्टर सुमैया तो अपने दुखड़े ही रोएंगी कि हमें बार बार बुला लिया जाता है, मैं एक जानूं, मैं 4 कोर्टों में कैसे जाऊं. पुलिस के साथ भी जो जुडिशरी का रवैया है, sometimes there is this assumption of disbelief कि you couldn't have done it, आपने तो किया ही नहीं, rather than उनको रिस्पेक्ट के साथ आप पेश आए. बट आप उस विक्टिम को देखें, हम स्क्रीन्स की बात करते हैं, तो स्पेशल प्रोटेक्शन मेजर्स जब तक नहीं होंगे, once the trial starts, to ensure anonymity, to make sure that she doesn't have to see the perpetrator, she doesn't have to sit next to him, and she is not in the way of people who can come forward and add those pressures onto her. Simple चीजें हैं, वीडियो टेस्टिमनी, अलग कमरा. अच्छा, अलग कमरा नहीं, कितने हमारे कोर्टों के अंदर, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तो चले हम बात ही नहीं करते. अपेरेंटली पूरे पाकिस्तान में सबसे बुरा निजाम वहां का है, and they're being shifted now hopefully. बट कहाँ खवातीन के सेपरेट वॉशरूम्स किधर हैं कितने कोर्टों में? आपने सुबह से जाके घंटों ख्वार होना है. What motivation do you have to get up? केस चलेगा कि नहीं चलेगा, adjourn होगा, right? और फिर वहां आपके साथ सलूक क्या होगा? तो how are we even motivating them to fight their own case? ये सब चीजें हैं. तो स्पेशल प्रोटेक्शन मेजर्स का हमने एक और रिसर्च की है जिसमें हमने देखा है कि एक सेपरेट वेटिंग रूम की वजह से 14% आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है उसमें इजाफा आ जाता है. तो वहां यू विल कंटिन्यू, यू विल नॉट रिजाइल, यू विल कीप गोइंग टू कोर्ट.
अच्छा, मैं यहाँ पे I'll just try to, because I have to leave. I'm so sorry, in like the next 2-3 minutes. I'd like to conclude on something very general. बिल्कुल हया बिल्कुल ठीक कह रही हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जनरल एनालिसिस होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए सेपरेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, एब्सोल्युटली। आई थिंक अब जो है वो बहुत सारी इसके बारे में अवेयरनेस भी आ गई है और इस पे काम भी हो रहा है, एटलीस्ट इन द मेजर सिटीज। I can assure you that. But the thing is, हया, we also, मतलब मुझे अब जैसे जैसे आप ये बात कर रही थी, मुझे वो सारे victims याद आ रहे थे जिनको मैंने हैंडल किया है, and the recurring problem that I see and the things that these ladies mentioned, because as you said कि वो पूरा process of चालान बनना and investigation, it takes time. So I used to see those victims again and again and again. And you know, you would there is one thing that all of these ladies would say, and that would be that, madam, we do not have money, we are relying on our parents. The court system is so expensive. She said कि 50,000 रुपए मेरा वालिद साहब, the walid sahab would be like withholding like a लकड़ी का support के साथ, he would be coming in with his daughter and she would say कि अभी 50,000 रुपए हम वकील को देके आए हैं, and we have no idea what the वकील is saying. We don't know if he's going to do it in our favor. हमें नहीं पता वो दूसरी पार्टी से पैसे ले लेगा. So they are not only, so because of lack of financial independence and again awareness, trust me, I think most of the reconciliations out of the court or the women resigning, trust me, that is the reason. Well, they would say कि मैडम अभी हम उधर से इतना किराया देके इधर आए हैं, अब इतना किराया देके हम जाएंगे, वकील साहब ने हमें कल भी बुलाया है और उसने अभी 5,000 रुपए जो है फोटो स्टेट के लिए मांग लिए हैं और अभी इसके लिए मांग लिए हैं. So these are also the realities that we all need to realize, you know, apart from, because जैसे आप, why was I interested in knowing what are the reasons of low conviction? As you see, majority of the reason is nothing to do with, you know, the DNA or whatever. ठीक है, थोड़ा बहुत उसका हिस्सा है, but mostly there is a reconciliation between parties, or conciliation between parties, and they're resigning, right? They're resigning, and वो आपस में उनका राजीनामा हो जाता है. So these are the areas that we need to focus on, and maybe come up with some laws where these non-compoundable offenses are still tried even if the victim just goes back and the state takes over. But you see the connection, right, Amna? Like the longer the trial takes, the more room there is for that resigning to happen, and for more money to be extracted by the council, and for more trusts and all of that. So that is why we don't take the focus ke bhai we are all working ke conviction bade ya acquittal kam ho. I think the framework we have to adopt is that let's try to bring the trial time in a qualitative manner closer to the actual legislative timelines, so that, you know, day to day, जिस तरह अगर मॉडल कोर्ट से मर्डर के केसेस सुन रहे थे तो बहुत तनकीद उन पे होती थी कि क्वालिटी क्या है जज के वर्डिक्ट की, but it has to be, these cases have to be fast tracked. Absolutely. जो आपने पैसों वाली बात की ना, you would not believe that yesterday I still had one of my victims come to me to Islamabad. Like, I handled her case in Pindi and she found me through someone, and she said that, you know, I'm posted here, and she was holding a Quran and she was crying, you know, okay, how much money a lawyer has, you know, taken from her and she can't give any more. So this is something that I completely agree with you on, कि ज़्यादा time लगता है तो लोगों को, victims को exploit करने का ज़्यादा chance होता है, be it you know the accused. और sorry आमना, मैं आपकी बात काट रही हूँ, हम वकील प्राइवेट करते क्यों हैं जब प्रोसिक्यूटर हमें स्टेट की तरफ से should be, बात तो यही है ना, बात तो यही है कि देखिए ना कि वो प्रोसिक्यूटर दिल नहीं लगाएगा, समझेगा नहीं, या कोऑर्डिनेशन नहीं है, या केस प्रिपेयर नहीं करेगा जब तक हम अपनी जेब से अपनी बाइक बेच के, यू नो, कर्जा चढ़ा के अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी वकील के हाथ में नहीं डालेंगे, हमें सुकून नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट द प्रोसिक्यूशन. पूरी डिबेट में आप, most of the places where I have gone, hardly anybody talks about prosecution. And even अगर आप notice करें तो इस पिछले पूरे घंटे में हमने prosecution. We have run out of time. We're going to do it in part 2. Yeah, the second session is about the prosecution gaps in it. Yeah. And I'm so happy. No, thank you, Amna, for taking out time. I realize you're in the field, and, you know, for giving these meaningful insights. You know, and I realize you have to leave now. So much for having me. Yes, I had a lovely discussion, and please let me know if I can be of help anytime soon again. Of course. Thank you for being with us. Dr. Sumayya, I'm going to come to you now, and we are going to, you know, move towards the concluding part of this session. Dr. Sumayya, कुछ चीजों के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, especially in terms of rape myths in the procedure. जिस तरह आपने भी बात की कि वो चाहे वो जुडिशरी हो,
जजमेंट्स हों, चाहे वो MLOs की लेवल पे हो, कुछ assumptions हैं कि मार्क्स ऑफ वायलेंस होने चाहिए, कोई अदर प्रूफ ऑफ वायलेंस होना चाहिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वजाइना एंड एनस, और भी इसके तरह की चीजें आती हैं कि जिसके अंदर अजम्पशन होती है कि रेजिस्टेंस होनी चाहिए किस तरह की, एंड जो कोवर्ट फॉर्म्स ऑफ वो है फोर्स, उसको देखा भी नहीं जाता, सिर्फ अजम्पशन होती है कि एक ओवर्ट हुआ होगा, विक्टिम ड्रग नहीं हुआ होगा. So इस बारे में how would you see these rape myths in the process? अच्छा, rape के बारे में ना there have been quite a few remarks from renowned people who have been studying this concept. मतलब ये तो वो चीज है ना जो times immemorial के साथ चला आ रहा है, one of the forms of oppression against women and children since times immemorial. इसके बारे में जो कहा जाता है वो ये कि rape is an offense which is hard to prove and harder to disprove. So coming down to marks of violence, normally हमारा एक routine रहा लिखने में कि जी सारे के सारे इंजरीज जो हैं वो लिख दो बस, ठीक है, फोकस ऑन द विजाइनल पार्ट एंड फोकस ऑन द प्राइवेट पार्ट्स, दैट्स इट, नो मार्क्स ऑफ वायलेंस सीन ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. दैट डज नॉट एब्सॉल्व अस ऑफ आवर रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर से लेके नीचे तक उस बंदी को या बच्चे को मुझे प्रॉपर्ली एग्जामिन करना है. ठीक है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मगर एक मैंने लाइक आई सेड एक बन गया. Why the victim would not resist? Fear for life, fear of being hurt again. And like एक बच्ची ने मुझे बात बताई कि मुझे पहले भी दर्द हुआ था, अभी भी मुझे दर्द होता, तो I thought it best कि मैं चुप रहूंगी तो मुझे दर्द नहीं होगा या कम दर्द होगा, वो मुझे मारेगा नहीं. You know, वो बच्ची had been abused serially by one of the relatives. तो मैंने उससे बाद में जब हिस्ट्री में पूछा कि why did you not like fight back, तो she simply told me मैं fight back करूंगी तो वो मुझे और मारेगा, तो I chose to remain quiet. अब आप मुझे बताओ ऐसे बच्चे में मुझे क्या मिलेगा, या वो 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा जिसको उस एक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो ट्रस्ट करके उसके साथ बंदे के बैठा हुआ है और उसको सोडोमाइज कर लिया जाता है, तो उसमें मैं मार्क्स ऑफ वायलेंस कहाँ से लाऊंगी? इसमें भी हमारे पास तरीके होते हैं टू फाइंड द व्हाट द माइंड डज नॉट नो द आई डज नॉट सी. तो जब मैं ट्रेनिंग कराती हूँ तो इसमें मैं यही कहती हूँ कि पहले आप पोजीशन पूछो कि द पोजीशन इन विच दैट विक्टिम वाज रेप्ड और सोडोमाइज्ड, उसके बाद उससे कोरिलेट करो वो इंजरीज जो उस जगह पर हो सकती हैं. हमारे यहाँ एल्बोज चेक करने का कोई रिवाज नहीं है, हम रिवाज मतलब एज इन प्रैक्टिस नहीं है. हमारे यहाँ नीज को नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ बैक को एग्जामिन नहीं किया जाता, हम ज्यादा से ज्यादा वाइट मार्क्स पे फोकस कर रहे होते हैं. यार कोरोबोरेटिव इंजरीज जो मैंने नोट नहीं की, जो मुझे कर लेनी चाहिए थी, देखना चाहिए थी, वो अगर मैं मिस कर रही हूँ तो दैट इज माय फॉल्ट. जो MLOs हैं, they need to be trained to express themselves better. Like to examine the victim better. Examine and report using more clear language. Yes, exactly. हाँ, documentation उनका बहुत weak होता है mostly. समझाना पड़ता है कि किस चीज को कैसे लिखना है. Like हमने जो ये history को in the victim's own words का कहा, वो इसी वजह से कहा कि उसको जब ट्रांसलेट करेंगे ना टूटी फूटी अंग्रेजी में, तो उसकी हिस्ट्री कुछ से कुछ हो जाएगी, and that will actually go against that victim's narration, कुछ भी हो. प्लस डॉक्यूमेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. आप जब किसी इंजरी को डॉक्यूमेंट करते हो या किसी भी फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करते हो, तो उसकी एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है. जब भी कोई इंजरी डिस्क्राइब होती है, मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, पहले उसका साइट लिखा, पहले टाइप ऑफ इंजरी लिखा जाता है, इंसाइज्ड है, लेसरेटेड है, ब्रूज है, फिर साइट लिखा जाता है किस जगह पर है, फिर साइज लिखा जाता है, फिर डेप्थ लिखी जाती है, साइज में लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ तीनों चीजें आ जाती हैं, फिर कलर लिखा जाता है, फिर कोई स्टिचेस लगे हैं कि नहीं लगे हैं ये लिखा जाता है. यानी यू मीन से व्हाट आई मीन टू से इज कि लाइक एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है हर चीज का, जो अब हमने SOPs में बनाया है. मैंने अपने जो अभी जो परफॉर्मा जो हमारे डिजाइन हुए हैं, इसमें हमने ये सब चीजें डाल दी हैं. पहली बार रेप के परफॉर्मा में हमने ये भी डाला है कि मार्क्स ऑफ वायलेंस जो मिल रहे हैं ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उनको डिक्लेयर भी करो. इज इट शजाए खफीफा, इज इट अ माइनर इंजरी ऑन द हेड और फेस, इज इट जरा गैर जायफा दामिया, इज इट एन अब्रेजन ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो वो डिक्लेयर करो, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली गो टुवर्ड्स द प्रोसिक्यूशन, टू द हेल्प ऑफ द प्रोसिक्यूशन. मतलब ये जाएगा. अब वही वाली बात है कि व्हाट द माइंड डज नॉट नो द आई डज नॉट सी. रिपीटेड हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें वर्कफोर्स ऐसा चाहिए जो हमारा
diligent workforce हो जो स्पेशली हो ही मेडिको लीगल केसेस के लिए। जब तक हम मेडिको लीगल को स्पेशलिस्ट कैडर का दर्जा नहीं देंगे तब तक हम मेडिको लीगल सर्विसेज इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। आप देखो, कोई दिल की बीमारी होती है, डायबिटीज हो जाती है, तो हम क्या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं? तो स्टार्ट ट्रीटिंग मेडिको लीगल नॉट एज एन आफ्टर थॉट, ट्रीट इट एज अ स्पेशलिस्ट कैडर। सही। जब तक आप नहीं ट्रीट करेंगे तब तक हमारी सर्विसेज इंप्रूव नहीं होंगी। मेरे जैसे बावले, आई कॉल माई सेल्फ बावला आफ्टर स्पेंडिंग 22 years over here, मेरे जैसे बावले आपको नहीं मिलेंगे। कोई एक दो, मेरी कोशिश ये है कि मेरे जैसे मैं बना सकूं, कोई एक दो डेडिकेटेड आ जाएं जो हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। जब तक मेडिको लीगल को स्पेशलिस्ट कैडर, पहला स्टेप मेडिको लीगल को स्पेशलिस्ट कैडर बना दो, मेरी सर्विसेज 110% इंप्रूव हो जाएंगी, बिकॉज देन माई पीपल विल टेक प्राइड इन व्हाट दे आर डूइंग। That makes a lot of sense. Sadly, time की कमी की वजह से we'll have to end discussion. But before we do that, Haya, based on what we have discussed today, how do you see things going forward? और जो existing rules and procedures हैं, are they in line with on ground realities and the practices and the experiences that we have just heard from Dr. Sumayya and Amna? How do you make sense of all of this? मैं पहले ये जरूर कहना चाहूंगी, I think what we have, हमारी छोटी सी कोशिश is groundbreaking in many ways. It may not be research which is worth publishing in an academic journal, but it's certainly a very important contribution, and I would like to pay credit to the three authors. The lead author, our Associate Director, Advocate Maliha Zialari, and Mr. Shalom and Ms. Soha, our Research Associates at the office. इन्होंने बहुत taxing times में, जब COVID का बहुत ज़्यादा, अब तो हम ढीठ हो गए हैं, but first wave, second wave के दौरान इन्होंने field में बहुत ज़बरदस्त काम किया था, and उनकी मेहनत की वजह से ही we have these entry points. So पहली बात यही है कि the over reliance on medical evidence and the inability to capture it, the inconsistencies between the 164 and the way that the examination in chief is done corroborates the fact that there is a lack of any coordination or cohesive approach or strategy making between the prosecution and the investigation. The FIRs are rushed, तो उसमें सही से आप कैप्चर नहीं कर सकते और चालान सही से स्क्रूटनाइज भी नहीं आपका हो रहा होता। तो all these insights right now on the qualitative side, compounded with the fact that we now actually have timelines to understand, we hope that this has created a pathway for further discourse, further discussions, seminars, dialogues, and more scrutiny and research. एक इंडिविजुअल पहलू को लेके हमें इसमें तफसील से बात करनी है। के बाद पहला, जैसे मैंने कहा कि इनके सूबे में as a result of the कायनात सुब्रो case, in its new budget for the creation of a one-stop center for victims, so at least allocation has been done and that everybody is on board कि one-stop center होना चाहिए। तीसरी बात है, the IG police and the Sindh government together has notified 288 specialized IOs. तो GBV कोर्ट्स तो पहले ही मुंतखब थे, अब हम काम कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं कि आपको स्पेशलाइज्ड मेडिको लीगल ऑफिसर्स की जरूरत है, मैजिस्ट्रेट्स की जरूरत है। तो स्पेशलाइज्ड केडर के साथ मिलके यू कैन जोन इन, यू कैन मोटिवेट देम, यू कैन पुट ऑल योर ट्रेनिंग एनर्जीज एंड कैपेसिटीज इनटू दिस लिमिटेड यूनिवर्स। वरना तो देयर इज नो एंड इन साइट। आप कतरा कतरा करके वी हैव नॉट बीन एबल टू सी अ डायनामिक सॉर्ट ऑफ चेंज इन द लैंडस्केप। So those are the parting words, and thank you so much. And the research is available on our website, and there'll be a link also with this talk. So thank you so much. Thank you, and with that we'll end this discussion. जो पहली और दूसरी episode है Research Dialogue series की, you can find those on our social media pages along with the reports which are available on our website. Do give us your feedback and comments, and we'll see you in the next episode of this series. Thank you.